Just please wait, friends. Let others also join. We'll resume. Is my voice audible, friends? Please confirm. Yes, sir. So let's continue, friends. And what I'm saying is that there are a lot of misconception among the common people when it comes to homeopathy and homeopathic remedies. There are many people who believe that homeopathic remedies are not useful in handling mechanical injuries. Mechanical injuries in the sense small cuts, bruises, wounds. In this kind of injuries, homeopathic remedies have no role to play. This is what commonly many people believe. But is my voice not clear, friends? क्लियर है या नहीं है? क्लियर सर, क्लियर है सर, क्लियर है, क्लियर है. आप लोगों का क्या मानना है, फ्रेंड्स? Do you agree with that statement, or do you believe that there are very efficient remedies in homeopathy which can very well handle these mechanical injuries? If yes, then which are those remedies? Arnica, then what are the other remedies? Arnica, calendula, Calendula, then Ruta, Plastox, Ruta, Testox, Ruta, Ledampal, Bellis Perines, or Symphytum. Anything else? Hypericum, Staphylococcus, acetic acid, Staphylococcus. These are the best remedies for injuries, correct? एक और है, एक कहावत है फ्रेंड्स हिंदी में, और लाइटर नोट आई एम सेइंग, डोंट टेक इट अदरवाइज. एक कहावत है, चमगादड़ को अगर जंगल से पकड़कर महल में भी लाएंगे तो भी वो सोएगा ऊपर छत पे, वो भी उल्टा लटक के. इसका क्या मतलब होता है? व्हाट डज इट मीन? चमगादड़ मतलब वो बैट होता है ना, चमगादड़ को जंगल से पकड़कर महल में भी लाएंगे तो भी वो सोएगा छत पे, वो भी उल्टा लटक के. इसका क्या मतलब होता है इस कहावत का? किसी ने नहीं सुना है? हैबिट चेंज नहीं होती, खासकर जब वो हैबिट खराब हो.
करेक्ट? मदीहा मैडम सही बोल रहा हूं? अभी कुछ देर पहले जस्ट फ्यू मिनट्स बिफोर we decided that in homeopathy there are no best remedies. अभी मैंने आपको थोड़ा उल्टा करके सवाल पूछ लिया तो बनाने लग गए आप लिस्ट फिर दोबारा. Is it fair? देखिए गलती आप लोगों की भी नहीं है फ्रेंड्स. The kind of education that is being given at ground level, this kind of list are mounted upon you and it doesn't go so easily. It will not go so easily, but निकालना पड़ेगा ना हमें. चलिए इसके ऊपर थोड़ा सा हम लोग को डिस्कशन जरूरी है फ्रेंड्स, मैकेनिकल इंजरीज के ऊपर. Now we all know that our remedies act only upon the vital force, correct? Ensuring that the deranged vitality is restored back to order. ठीक है ना? That we have discussed plenty of times. Now we study that the vitality or the vital force is dynamic and spiritual in nature, and if something has to act upon it, that acting force also has to be at a dynamic plane. That is the reason why we potentize the drug, right? So that the curative power is rose to that dynamic level where it can affect the vitality. Correct? Yes, sir. Now my question is, friends, I have a very simple question. Listen to this and answer me. Can mechanical injury derange the vitality? किसी को चोट लग गई, किसी का कट गया, किसी को ब्रूइज हो गया, तो क्या वो इंजरी वाइटैलिटी को डिरेंज कर सकती है? No, sir. नहीं करेगा. तो आप किसी को रेमेडी दे रहे हो, उसका क्या मकसद है? Why you are giving a remedy? Because from our remedy we expect that remedy to act on the vitality and restore the vitality back to order. If a person's vitality is already in order, these mechanical injuries are not going to derange his vitality, then why you are giving him medicine? आपको कंफ्यूजन हो रहा है? मैं एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा. अभी हमारे किसका एग्जांपल नाम लूं मैं? किसी मेल का नाम बताइए कौन है हु इज ऑनलाइन? नंदीश. नंदीश सर मैं आपका नाम लूं, चलेगा आपको एग्जांपल के लिए? या किसका लूं? कोई आगे आइए जो इंटरेक्ट कर सकता है. लेडीज भी चलेंगे, कोई इश्यू नहीं है. कोई तो आगे आइए. लेकिन एक छोटा सा मैं एग्जांपल दूंगा फ्रेंड्स, उससे आपको चीजें समझ में आ जाएगी. You will be able to better understand with the help of an example. Somebody come forward. Who is going to speak to me? I have a very simple question. उसका आंसर देना है बस. ओके सर. कौन है? क्या नाम है सर आपका? क्या नाम है सर आपका? हेलो सर. हाँ क्या नाम है आपका? हेलो, मैं डॉक्टर नंदीश हूँ सर. हाँ तो मैंने करेक्ट स्पेल किया ना, ठीक है राइट. कहाँ से हो आप? सर, आई एम फ्रॉम कर्नाटका. You are from Karnataka. Which part of Karnataka? Even I am from Karnataka. आई एम स्टेइंग इन नियर धारवाड़, सौदत्ती. Near Dharwad you are. Okay. You are married or unmarried? हाँ सर, नियर सर. मैरिड सर, मैरिड. Kids? बच्चे हैं? कितने हैं? है तो. 2 kids sir. One is 13 years old and younger daughter I had. Younger daughter and elder son. How old are they? Both the children. Sir, elder son is 13 years old. Hmm. And my daughter is 6 years old. Daughter is 6 years old. हाँ सर, daughter. ठीक है ठीक है. अब मान लीजिए आप बहुत लाखों में कमा रहे हो. You are earning in lakhs per month. You have a well settled family. You have well settled house. Your financial background is good. Your bank balance is also in lakhs of rupees, and you are stable, financially well settled person. Now in such a situation,
अगर आपकी 6 साल की जो बच्ची है उसको अगर साइकिल चाहिए और आपका पड़ोसी आपको आके पैसे देता है और आपको बोलता है कि ये लो आपकी बच्ची साइकिल मांग रही है, ये लो पैसे रखो और अपने बच्चे को साइकिल खरीद के दो, आप लेंगे उनसे पैसे? नहीं नहीं सर, क्यों नहीं लेंगे आप? नहीं सर, मैं ही दिला दूंगा। हाँ बिल्कुल सही जवाब है। आप कमा रहे हो, आपकी बच्ची को साइकिल चाहिए, आप दिलाओगे। आपका पड़ोसी कौन होता है आके पैसे देने वाला? यस सर। करेक्ट है ना? हाँ हाँ सर। तो अगर ओके अगर आपकी इनकम स्टेबल डेफिनेटली। नहीं है, अगर आपकी इनकम स्टेबल नहीं है, टच वर्ड ऐसा ना हो, अगर कोई स्ट्रगल कर रहा है, पैसे नहीं है और उसकी बच्ची अगर साइकिल मांग रही है और उस बेचारा नेबर को तरस आ रहा है, वो आके पैसे देता है, तो हो सकता है कंडीशन में ले भी ले। But as long as you are earning well, you are financially settled, you will not take help from others. Correct? हाँ सर। ठीक है, अब इसको कंपेयर करते हैं। थैंक यू सर। इसको हम कंपेयर करेंगे। See, this is exactly the same situation, friends. When vitality of a person is already in order, it doesn't need help of any medicines to remove this kind of mechanical injuries. The injuries will automatically be healed by the vitality which is already in order. आपको समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? अगर मान लीजिए किसी को चोट लगी है, कट गया है किसी का हाथ पैर, अगर कोई मेडिसिन नहीं देंगे तो क्या वो जिंदगी भर वो वुंड ऐसा रहने वाला है कि हील होगा अपने आप? Body has a natural mechanism of handling these mechanical injuries. If the vitality of that person is already in order, it doesn't need the help of any medicines. It will automatically get cured. मैं नहीं कह रहा हूं friends. I am not saying this. I'll show you the reference. But आपको समझ में आया ये? Have you understood this? Yes, sir. I'll show you the reference, friends. I'll show you the reference. This is taken from lectures on homeopathic philosophy by J.T. Kent. If man is injured from external, example, if he has a finger torn, it will soon be repaired by the order which is in the economy. By the order which is there in the economy means the vitality which is in order, that will repair it automatically. The vitality, if it is in order, it has the tendency to repair every wrong that is on the surface caused by external violence. Mechanical injuries are nothing but external violence. अपने आप ठीक हो जाएगा वो, कोई मेडिसिन देने की जरूरत नहीं है। आई बात समझ में आपको? Is it clear, friends? अब आपका सवाल हुआ। हाँ जी सर। सर कभी कभी सेकेंडरी इन्फेक्शन होने के चांस रहता है ना इंजुरी का, उसको प्रिवेंशन कैसे? कभी कभी सेकेंडरी इन्फेक्शन होने के चांसेस रहते हैं। सेकेंडरी इन्फेक्शन होने के मेन कॉज क्या रहता है? एक्सटर्नल bacteria. So correct. If the affected area is not kept sterile, if the affected area में अगर जहाँ पे कल चोट लगी है वहां पे डस्ट पार्टिकल्स हो, मड हो, या फिर ऐसे ओपनली खुला छोड़ दिया, बैक्टीरिया एक्सपोज हो गए, इन्फेक्शन का खतरा होने चांसेस रहते हैं डेफिनेटली। In such cases, what you have to ensure is that by whatever means, चाहे वो डेटॉल यूज करो या कैलेंडुला यूज करो या आर्निका टिंचर यूज करो, you are cleaning the affected part externally to ensure that that affected part is kept sterile. That will help in recovery, wound healing. तो हम पढ़ते हैं सेकेंड ईयर में, that will help in wound healing. But removing a disease by dynamic medicine is not required in such cases. Are you understanding the difference? जहां पे वाइटलिटी डीरेंज होने के बाद जो डिजीज आती है उसको डायनामिक मेडिसिन चाहिए। ऐसे इंजरीज के लिए डायनामिक मेडिसिन की जरूरत नहीं है क्योंकि वो बंदे का वाइटलिटी ऑलरेडी ऑर्डर में है। सर अगर फिर मैकेनिकल इंजरी हुई है तो हमको फिर जैसे आर्निका का हमें ऑइंटमेंट देना होगा, फिर एक्सटर्नल एप्लीकेशन देनी होगी कि? देखिए आप ऐसे मैकेनिकल इंजरीज में अगर आपका इंटेंशन ये है कि वुंड को स्टेराइल रखना है, आप जो भी दो, कुछ मत दो, सिर्फ गर्म पानी से क्लीन करके छोड़ दो, चलेगा।
अगर वो पेशेंट का और कोई जो मतलब जो हैबिट्स है वो अगर वो सुनने मतलब इट इज काइंड ऑफ, आप देखिए कैसे होता है ये जो लिटरली ये जो अनएजुकेटेड पीपल होते हैं या फिर ये जो स्लम एरिया में रहने वाले बच्चे होते हैं, वहां पे साफ सफाई वैसी भी होती नहीं है। तो अगर आपको इंश्योर करना है कि वुंड को साफ रखना है, थोड़ा सा क्लीन करो उसको, कैलेंडुला से या आर्निका से ऑइंटमेंट लगा के बस पट्टी बांध दो, चलेगा, कोई इश्यू नहीं है। ओके सर। लेकिन डायनामिकली मेडिसिन आप किस बेसिस पे दोगे, वो टोटलिटी पे दोगे, तो अनकंडीशनली सबको आर्निका या कैलेंडुला कैसे काम करेगा। अच्छा, एक और लॉजिक यहाँ पे हम यूज करते हैं, when we are saying that calendula is useful in mechanical injuries, कौन सी पोटेंसी में देंगे हम, बताइए कौन सी पोटेंसी में देंगे। मदर टिंचर। मदर टिंचर, मदर टिंचर देंगे या पोटेंसी में देंगे। चलिए उस पे हम आएंगे। अब आप बताइए मुझे, when it is given in the Mathematica that arnica is good for mechanical injuries, do we mean to say that when the proving of arnica was done, the provers developed mechanical injuries? Is it so? No sir. नहीं, फिर कैसे पता चला? It's again a clinical part, clinical symptom, correct? Yes sir. अब हम लोग, अब we are believing that कैलेंडुला 30 दे दो तो वुंड जल्दी हील हो जाता है। अगर ऐसा आप लोग मानते हो तो मैं आपको 100 केसेस दूंगा जहां पे छोटी छोटी इंजरीज हुआ है। कैलेंडुला देने के बाद अगर नॉर्मली कुछ भी अगर हम नहीं देते, इफ यू आर नॉट गिविंग एनी मेडिकेशन, दैट वुंड विल हील इन 2 or 3 days. So if you are claiming to heal that with the help of medicine, that healing process should happen within 1 day, कोई गारंटी लेगा? मैं 100 केसेस आपको दूंगा, एक दिन में ठीक होना चाहिए। नो सर। तो ये सारी प्रैक्टिसेस कहां तक सेंस टू व्हाट एक्सटेंट दिस काइंड ऑफ प्रैक्टिसेस मेक सेंस, आर यू एबल टू अंडरस्टैंड फ्रेंड्स? समझ में आ रहा है आपको? अब कुछ लोग ये सोचते होंगे, कुछ लोगों का ये भी सवाल आ सकता है कि ठीक है छोटी छोटी इंजरीज की अपने आप हील हो जाती हैं, बड़ी बड़ी इंजरीज का क्या करेंगे? उस टाइम पे भी हाथ पे हाथ रख के बैठे रहेंगे हम कि वाइटलिटी अपने आप ठीक करेगा? जैसे मान लीजिए किसी का बोन फ्रैक्चर हो गया, क्या देंगे हम उसको? बोन फ्रैक्चर में क्या देंगे हम? कौन सा मेडिसिन देगा, काम आएगा? सिम्फाइटम। वो एक कहानी होता था ना, चमगादड़, चमगादड़ सर। वो एक कहानी, चमगादड़ किसका आ गया किसी में? वो एक कहानी होता था ना फ्रेंड्स, हम पढ़ते थे, वो कौन सा था, वो अली बाबा और 40 चोर, शायद उसी का है ना, खुल जा सिम सिम, तो वो दरवाजा खुल जाता था। इसी तरह हम सिम्फाइटम देके बोलेंगे जुड़ जा सिम सिम, तो बॉन्ड्स अपने आप जुड़ जाएंगे। ऐसा होने वाला है क्या? नहीं सर। तो फिर सिम्फाइटम हम क्यों दे रहे हैं भाई? वो उसको अटेंशन की जरूरत है, सर्जिकल एड की जरूरत है, सर्जन की जरूरत है। अगर मान लीजिए अभी कौन है, हमारी अपर्णा मैडम है, लेट्स से अपर्णा मैडम नहीं, और कौन है, अमीषा मैडम है, ठीक है। अगर अमीषा मैडम को ड्रेस खरीदना है तो कहाँ जाएगी वो? मॉल में जा सकती है, मॉल में जाएगी, टेक्सटाइल शॉप में जाएगी। अगर मान लीजिए अगर प्रिया मैडम को, प्रिया जायसवाल मैडम को 2 किलो आलू और 2 किलो टमाटर खरीदने हैं, वो कहाँ जाएगी? सब्जी मार्केट जाएगी ऑब्वियसली। अगर मान लीजिए प्रिया मैडम टेक्सटाइल शॉप जाके पूछती है कि 2 किलो आलू और 2 किलो टमाटर दे दो, तो वो क्या कहेगा उसके बारे में? टेक्सटाइल शॉप में जाके अगर प्रिया मैडम 2 किलो आलू और 2 किलो टमाटर मांगेगी तो वो क्या बोलेगी शॉपकीपर? सर आप रॉन्ग जगह पे आए हैं, ऐसे बोलेंगे। बिल्कुल, जहां जाना है वहां पे जाना पड़ेगा ना उस चीज के लिए। ये मैं नहीं कह रहा हूं फ्रेंड्स, ये भी लिटरेचर में दिया हुआ है, आई विल शो यू द रेफरेंस। One who is sick in his vital force needs a physician. जिसका वाइटलिटी डिरेज हो गया है उसको होम्योपैथिक फिजिशियन की जरूरत है। He who has a lacerated wound or a broken bone or deformities
has need of a surgeon. If his tooth must come out, he must have a surgeon dentist. अगर किसी को दांत निकालना है, डेंटिस्ट सर्जन के पास जाना पड़ेगा. What would be thought of a man who, on being sent for a surgeon to set an injured man's bone, should go for a carpenter to mend the roof of the man's house? किसी को अगर सर्जन के पास जाना है और वो कारपेंटर के पास चला गया तो क्या होगा? रॉन्ग नंबर हो जाएगा ना. The physician must discriminate between the man and his house and between the repair of the man and the repair of the house. House मतलब हमारा शरीर, उसके अंदर का मैन मतलब हमारी वाइटैलिटी. होम्योपैथिक मेडिसिन को वाइटैलिटी को होम्योपैथिक मेडिसिन की जरूरत है. मैन को होम्योपैथिक मेडिसिन की जरूरत है, उसकी घर को नहीं. उसका घर से छत से पानी टपक रहा है तो उसको प्लम्बर के पास जाना पड़ेगा. होम्योपैथिक फिजिशियन के पास आके मतलब नहीं है. अगर उसका शरीर खराब हुआ है, सिर्फ शरीर अफेक्ट हुआ है, तो उसको कंसर्न आदमी के पास जाना पड़ेगा. होम्योपैथिक मेडिसिन वोंट हेल्प. फर्दर व्हाट द बुक सेज फ्रेंड्स, it is folly to give medicine for a lacerated wound to attempt to close up a deep wound with a dose of a remedy. folly मतलब foolishness. किसी का इतना बड़ा कट गया है, उसको स्टिचेस लगेंगे, आप मेडिसिन देके बोल रहे हो जुड़ जाओ, उनसे नहीं होने वाला ना. तो पेशेंट बोलेगा भूल जाओ उस डॉक्टर को, दोबारा नहीं आएगा आपके पास. वो भूल जा सिम पेशेंट भी कहेगा, है ना. अब इतना क्लियर इंस्ट्रक्शंस हमारे बुक में दिया है फ्रेंड्स. द अदर डे आई वाज वाचिंग वन वीडियो दैट वाज शेयर्ड इन टेलीग्राम, इन रेमेडीज फॉर इंजरीज पार्ट 1 पार्ट 2, पता नहीं कितने पार्ट्स वो मैडम ने शेयर किया है. क्या सेंस बनता है? एटलीस्ट कम से कम लिटरेचर में क्या दिया है और क्या सेंस बन रहा है, थोड़ा सा दिमाग यूज करो. Are able to understand friends what I'm trying to say? Use your logic and think and decide. It's not compulsion that you have to trust what I'm saying. What your logic says, is that something that is given in the literature, is this correct, or the people who are जो ज्ञान बांट रहे हैं, अपना रायता फैला रहे हैं, वो सही है? कौन सही है? लिटरेचर है ना. तो हमें ऐसे लोगों से सावधान रहना चाहिए, ऐसे रॉन्ग नंबर फैलाने वालों से सावधान रहना चाहिए. आई बात समझ में? चलिए नेक्स्ट. Yes, sir. There is another wrong conception among people that there are no painkillers in homeopathy. होम्योपैथिक में कोई पेनकिलर ही नहीं है, ऐसे लोगों का मानना है. आपका क्या मानना है? कौन से ऐसे इफेक्टिव पेनकिलर्स हैं हमारे पास, बताइए. which are the most effective painkillers in homeopathy? Macfos, what else? नहीं सर, कोई पेन किलर नहीं. शमिलमम सही. चमगादड़. चमगादड़. चलिए ठीक है. देखिए ये पेन जो किलर्स का जो कॉन्सेप्ट है, इसके ऊपर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो मैंने बनाया है. I'll share that in the WhatsApp group, तब आपको अच्छे से समझ में आएगा. ये मैं ब्रीफली आपको बता देता हूँ. when does a person gets pain? कब आता है? फिजियोलॉजी थोड़ा सा रिवाइज करते हैं. पेन कब फील महसूस होता है एक आदमी को? in response to any injury or any harmful threat that can cause any damage or destruction. In response to that, some chemical reactions happen within the body. The nerve endings are stimulated. The nerve endings which carry the pain messengers, the nerve endings are stimulated of that particular area, and then the brain gets information and then the person feels pain. ठीक है? So pain is basically an alarm sign that something is wrong somewhere. Something is wrong somewhere. That is the reason the pain is coming. And pain is also coming. Sometimes the pain can also be a what do you call it? Part of this homeostasis mechanism to ensure that that particular rest is given to that particular part. आप मान लीजिए आपकी घुटने में दर्द, इन्फेक्शन हो गया, इन्फ्लेमेशन हो गया है. अब आप जब तक उसको रेस्ट नहीं करेंगे, अपने आप ठीक कैसे होगा? तो रेस्ट करने के लिए जब तक पेन होगा तब तक आप रेस्ट नहीं करेंगे. पेन इज ए पार्ट ऑफ आवर बॉडीज डिफेंस मैकेनिज्म. डू यू एग्री विद दैट? पेन इज ए पार्ट ऑफ आवर बॉडीज डिफेंस मैकेनिज्म. डू यू एग्री विद दैट? Yes, sir.
And Yes, you have sir. to keep in mind, friends, you have to keep in mind our homeopathic remedies will never act curatively against our own body's immune system. Against our own body's immune system, our homeopathic remedies will never act curatively. Are you understanding, friend? So pain, what we have to do with our homeopathic remedies, we have to remove the cause because of which the pain is coming. ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी, तो बांस निकाल दो, बांसुरी का बजना अपने आप बंद हो जाएगा। पेन किस वजह से आ रहा है उस कॉज को निकालो ना, पेन अपने आप निकल जाएगा। That makes more sense, isn't it? Are you able to understand, friends, what I'm trying to say? So do we have any painkillers in homeopathy? अब आपका एक सवाल आ सकता है, फ्रेंड्स, तो इन किताब में हम क्यों पढ़ते हैं? मैकफोस में पढ़ते हैं, ट्रायल्स ऑफ पेन रेमेडीज पढ़ते हैं। कौन से ट्रायल्स ऑफ पेन रेमेडीज? आपको नाइट कैमोमिला, कॉफिया, देन कोलोसिन में हम पेन पढ़ते हैं, देन सिम्फाइटम में पेन हम पढ़ते हैं। व्हाई दैट इज गिवन देन? किसी को डाउट आ रहा है? किसी को डाउट आ रहा है? कितने लोगों को डाउट आ रहा है? उस डाउट का आंसर और आगे के जो टॉपिक्स है वो हम कल डिस्कस करेंगे। आई थिंक आज के लिए काफी है, क्योंकि अभी और डिटेल में जाना पड़ेगा उसका थोड़ा, तो कल हम लोग इसके ऊपर डिस्कस करेंगे। एंड टुमारो विल बी द लास्ट एंड कंक्लूडिंग डे ऑफ दिस डेमो वेबिनार सेशन, फ्रेंड्स। टुमारो वी विल कंक्लूड विद कवरिंग दिस टॉपिक्स, एंड वो कुछ और इंटरेस्टिंग टॉपिक्स है जो कल हम कवर करेंगे। एंड आफ्टर दैट, after completing that, we will wind up this 1 week webinar session. Correct. So thank you all for such a patient listening, friends. Hopefully you must have enjoyed it. आज का चमगादड़ वाला सेशन कैसा लगा आपको? आपके व्हाट्सएप में जरूर फीडबैक डालिएगा। प्लीज शेयर योर फीडबैक्स इन द व्हाट्सएप ग्रुप, एंड दिस फीडबैक्स आर इक्वली इंपॉर्टेंट फॉर मी, फ्रेंड्स, बिकॉज दैट विल गिव मी एन आइडिया कि आप लोग को किस हद तक मैं समझा पाया हूँ। तो योर फीडबैक्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी, so please do share your feedback in detail in the WhatsApp group. We'll meet up tomorrow. Tomorrow's session will be at 8 o'clock. Thank you, friends, and good night to all.